सो नेक्स्ट पैराग्राफ्स में इन्होंने बताया कि ये जो बुक है वो एक्चुअल में स्टार्ट होती है, जो स्टार्टिंग वर्ड है वो धर्म है और लास्ट वर्ड जो कंक्लूड होता है श्लोक का वो मम से होता है, यानी माई, तो मेरा धर्म। तो फिर धर्म का मतलब क्या है? धर्म का अगर एक डेरिवेशन इन्होंने बताया, धर्म टू अपहोल्ड, सस्टेन, सपोर्ट। द टर्म धर्मा डिनोट्स जो आपको होल्ड टुगेदर करे, आपको सपोर्ट दे। लेकिन उसका और एक और मतलब बताया है कि धर्म का मतलब होता है द लॉ ऑफ बीइंग, दैट विच मेक्स अ थिंग ऑफ बीइंग व्हाट इट इज़। अब धर्मा मीन्स therefore not merely righteousness or goodness, but it inculcates the essential nature of anything, without which it cannot retain its independent existence. For example, a cold dark sun is impossible as heat and light as the dharmas of the sun. Similarly, if we are to live as truly dynamic men in the world, we can only do by being faithful to our true nature, and the Gita explains to be me my dharma. तो धर्म का सिर्फ मतलब ये नहीं कि आप राइट हो और गुड करो काम, लेकिन ये कि आपका जो असेंशियल नेचर है, what you are made up of is actually your धर्म। देन फर्स्ट श्लोक आता है जो इकलौता श्लोक है जो धृतराष्ट्र ने बोला है। What did the sons of Pandu and also my people do when desires to fight? They assembled together on the holy plain of कुरुक्षेत्र, ओ संजय। तो इसमें जो पहला श्लोक है वो धृतराष्ट्र बोलते हैं, वो टेक्निकली संजय से पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है बैटल फील्ड में, क्या हो रहा है। तो द ब्लाइंड ओल्ड किंग इज सर्टेनली कॉन्शियस ऑफ द palpable injustices that he had done to his nephews, the Pandavas. Dhritarashtra knew the relative strength of the two armies and therefore was fully confident of the larger strength of his son's army, and yet the viciousness of his past and the consciousness of the crimes perpetrated seems to be weighing heavily upon the heart of the blind king, and so he has his own doubts on the outcome of the war. तो इसमें ये है कि धृतराष्ट्र को पता है कि उसको कॉन्शियस में उसको पता है कि उसने बहुत सारे इनजस्टिसेस किए हैं नेफ्यू को, उसको पता है कि उसकी जो सन की आर्मी है वो काफ़ी बड़ी है स्ट्रेंथ में, लेकिन स्टिल वो जो उसने इतने क्राइम्स किए हैं वो सारी चीज़ें ना उसके दिल में वो डर बैठा हुआ है कि ये सारी चीज़ें मैंने गलत तो की हुई हैं, तो व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ द बैटल फील्ड। देन संजय सेड, having seen the army of Pandavas drawn up in the battle array, King Duryodhan then approached his teacher and spoke these words. From this stanza onwards we have the report of Sanjay. अब इसके बाद जो है जो संजय जो बोलते जाएंगे वही बताएंगे। तो इसमें क्या कहते हैं, when Duryodhan saw the Pandava forces arrayed for battle, though they were less in number than his own forces, yet the tyrant felt his self-confidence draining away. As a child would run to its parents in fright, so too Duryodhan, unsettled in his mind, run to his teacher Dronacharya. When our motives are impure and our cause unjust, however well equipped we may be, our minds should necessarily feel restless and agitated. This is the mental conditions of all the tyrants and lusty dictators. तो टेक्निकली क्या है कि जब दुर्योधन ने देखा, मतलब संजय देख रहे हैं कि दुर्योधन ने पांडवों की सेना देखी तो वो मतलब थोड़ा सा बौखला गए, मतलब उनका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस वॉज ड्रेनिंग अवे, क्योंकि उन्हें पता है, मतलब ही नोज़ दैट हिज मोटिव्स आर इम्प्योर। तो नॉर्मली जब आप कुछ गलत कर रहे होते हो तो टेक्निकली आपके पास कितनी भी पावर हो, योर माइंड विल बी वेरी रेस्टलेस एंड एजिटेटेड। तो ये एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि जो लस्टी डिक्टेटर्स और टायरेंट्स होते हैं उनकी मेंटल कंडीशन ऐसे ही होती है। देन the shlok is, behold, O teacher, this mighty army of the sons of Pandu, arrayed by the son of Draupad, thy wise disciple. It is indeed stupid of Duryodhan to point out to Drona the army formation of Pandavas. Later on also we shall find Duryodhan talking too much, and that is a perfect symptom indicating the inward fears of a great king over the final outcome of unjust war. तो इसमें ये बताया है कि जब अगर आप रॉन्ग पोजीशन पे हो और रॉन्ग साइड पे हो तो आप टेक्निकली बहुत कुछ बोलते हो, बहुत ज़्यादा बड़बड़ाओगे। तो ऐसे ही दुर्योधन जो है वो बहुत कुछ बोलेगा, मतलब ही इज़ एक्चुअली वेरी फियरफुल ऑफ द फैक्ट कि जो चीज़ें वो कर रहा है, जो ये वॉर है वो अनजस्ट है। देन ही एक्चुअली टेल्स कि भीम है, कौन कौन है सामने पांडवों की सेना में और कौन कौन है।
तो इन दीज 3 स्टैंजाज वी हैव लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ ऑल दोज हु वर नोटेड पर्सनालिटीज़ इन द पांडवा आर्मी। तो ये बहुत सारे 3-4 लाइन्स हैं जिसमें ये बोलते हैं, पांडवों के नाम हैं कि अर्जुन है, युधिष्ठिर है, विराट है, द्रौपद है, कौन कौन जो पांडवों की सेना से हैं। Then Arjun and Bhima are accepted men of war noted for archery and strength. These enumerated heroes were, says Duryodhan, each as great as Arjun and Bhima, the implication being that though the Pandav forces were less in number, their total effectiveness was much greater than that of the larger and better equipped army of the Kauravas. तो जब हमने कल भी सुना था दैट कि हम अगर अपनी इंटरनल फोर्सेस को ऑर्गेनाइज़ कर लें अपनी खुद की बुद्धि के साथ, तो हम बाहर की चाहे कितनी भी बड़ी फोर्सेस हों हम उसको कर सकते हैं, हरा सकते हैं। तो वही चीज़ दिखा रही है कि ये जो दुर्योधन है वो देख रहा है पांडवों की सेना एंड ही इज़ उसको लग रहा है कि मतलब बेशक सामने वालों की सेना जो है ना वो बेशक छोटी है लेकिन वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो then he says that know also, O best among the twice born, the names of those who are the most distinguished among ourselves, the leaders of my army. These I name to thee for thy information. Addressing his master, अब वो ना बात कर रहे हैं, द्रोणाचार्य से ही बात कर रहे हैं दुर्योधन। एंड वो ना पहले तो सामने वाले की सेना क्या देखता है, फिर वो अपनी सेना का बोलता है कि अरे कि मेरी सेना में तो बढ़िया बढ़िया से लोग हैं, आप हो अपने जो अपने टीचर का नाम वो बोलता है ट्वाइस बॉर्न इसलिए बोला जाता है कि वो ब्राह्मण्स जो होते हैं कि पहली बार तो वो पैदा होते हैं फ्रॉम द मदर्स वूम एंड उसके बाद जब वो टेक्निकली पढ़ते हैं, उनका जब वो पर्सनालिटी डेवलप होता है तो उनको वो ट्वाइस बॉर्न होते हैं। एक रिचुअल भी होता है जिसमें एक धागा पहनाया जाता है, तो उससे वो ट्वाइस बॉर्न बोला जाता है। तो ये एक्चुअल में टेक्निकली अगर कोई वीक इंसान है जिसको पता है कि वो गलत कर रहा है तो वो अपनी ना प्लस पॉइंट्स कि हाँ मैं जीत जाऊँगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो अ वीक मैन टू एस्केप फ्रॉम हिज ओन मेंटल फियर्स विल विसल टू हिमसेल्फ इन द डार्क। द गिल्टी conscience of the tyrant king had undermined all his mental strength. The more he realized the combined strength of the great personalities arrayed in the opposite enemy camp, the more abjectly nervous he felt in spite of the fact that his own army was also manned by highly competent heroes. In order to revive himself, he wanted to hear words of encouragement from his teachers and elders, but when Duryodhan met Drona, the Acharya chose to remain silent, and the helpless king had to find for himself new means of encouragement to revive his own drooping enthusiasm. Therefore, he started enumerating the great leaders in his own army. तो जैसे इसमें एक एग्जांपल है कि अगर कोई कावर्ड इंसान है तो वो अगर अंधेरे में जा रहा है तो वो विसल करने लगता है ताकि उसको लगे कि नहीं सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। एंड उसी की तरीके से जो दुर्योधन है वो अपनी आर्मी को मतलब उसको रियलाइज़ हो रहा है कि सामने वालों की बहुत बढ़िया आर्मी है, बट वो अपने आप को बता रहा है कि नहीं मेरे में भी बहुत मस्त से लोग हैं। When a person has thus completely lost his morale due to the heavy burden of his own crimes weighing on his conscience, it is but natural that he loses all sense of proportion in his words. At such moments of high tension, an individual clearly exhibits his true mental culture. He addresses his own teacher as the best among the twice born. मतलब वो खुद ही मतलब बता रहा है कि टीचर को कि हाँ आप बहुत बेस्ट हो, मतलब दिस इज़ एक्चुअली इंसल्टिंग इन वन ऑफ द फॉर्म्स कि भाई जिसने आपको पढ़ाया है आप उसको बता रहे हो। तो फिर है दैट though Duryodhan in his mental hysteria got slightly upset at the subjective onslaught of his own brutal motives and past crimes, like the true dictator he was, he regained his balance in no time. The moment he had split out in his insulting arrogance the term twice born in addressing his teacher, he realized that he had overstepped the bounds of discretion. Perhaps the cold silence of revered Acharya spoke amply to Duryodhan. तो दुर्योधन तो द्रोणाचार्य के पास हेल्प मांगने के लिए कि भाई वो इनकरेज करेंगे, बट वो इतना परेशान है। इससे भी होता है कि एज अ पर्सन हम भी कहीं होते हैं कि जब हम गलत होते हैं और हम किसी के पास जा रहे होते हैं कि नहीं मैं सही हूँ, तो वी एक्चुअली से अ लॉट ऑफ रॉन्ग थिंग्स। तो टेक्निकली दुर्योधन भी वही चीज़ कर रहा है, और जो सामने वाला है जो उसका गुरु है वो उस इंसल्ट का कुछ जवाब नहीं देते, ही स्टे साइलेंट।
and many other heroes who are determined to give up their lives for my sake, armed with various weapons and missiles, all well equipped in battle. तो ये दुर्योधन बता रहा है कि बहुत सही मिसाइल्स हैं, weapons हैं. The incurable vanity of dictatorial tyrant is amply clear when he arrogates to himself the stupendous honor that such a vast array of heroes had come ready to lay down their lives for my sake. To all careful students of Mahabharat, it cannot be very difficult to estimate how many of these great veterans would have thrown in their lot with Duryodhan, had it not been the fact that Bhishma the grandsire was fighting in the ranks of Kauravas. तो मतलब इनको इससे ये भी बताना चाह रहे हैं कि कितना मतलब मुश्किल रहा होगा उन लोगों के लिए कि ये दुर्योधन के साइड पे आए हैं जब उनको पता है कि ये सारी चीज़ें गलत हो रही हैं. नेक्स्ट चीज़ है जो इसमें आता है कि जिसमें दुर्योधन की एक पॉजिटिव क्वालिटी भी दिखाई गई है. दिस आर्मी ऑफ आर्स डिफेंडेड बाय भीष्म इज इनसफिशिएंट वेयर एज द आर्मी ऑफ देयर्स डिफेंडेड बाय भीम इज सफिशिएंट, और this army of ours protected by Bhishma is unlimited, whereas the army of theirs protected by Bhim. तो he is actually टटोलिंग कि भाई उनकी आर्मी बेटर है कि हमारी आर्मी बेटर है, कौन जीतेगा. बट उसको पता है कि अगर उसको जीतना है तो ही इज़ एक्चुअली गिविंग द कमांड कि चाहे कोई भी, मतलब उसे पता है कि बहुत सारे लोग हैं उसकी आर्मी में, बहुत सारे ट्राइबल्स हैं और बहुत सारे राजा हैं उसके साथ, लेकिन अगर वो और पूरी उसकी आर्मी एक साथ एकजुट होकर नहीं लड़ती है और भीष्म को प्रोटेक्ट नहीं करती. भीष्म को इसलिए प्रोटेक्ट करना है क्योंकि भीष्म जो है वो कौरवों की सेना को मेन उनके सेनापति थे. तो उसको पता है कि अगर उसको जीतना है तो उसके सारे डिविजन्स को आर्मी की वो उनको यूनिटी दिखानी होगी और उनको भीष्म को प्रोटेक्ट करना होगा, सिंगल पॉलिसी, तभी वो जीत पाएगा. तो दिस इज़ हाउ कि टेल्स कि मतलब दुर्योधन सस्पेक्ट्स दैट लस्टी फोर्सेस दैट ही हैज़ मोबिलाइज्ड इज़ एन ill assorted heterogeneous army constituted of the various tribal chieftains and kings of distant lands, and the strength of such an army could be assured only when they hold on to a united strategy in all their various maneuvers. Synchronization of the different operations is the very backbone of an army's success. In order to bring this about as a true strategist, Duryodhan is instructing his various commanders working in their different wings to work out the single policy of protecting Bhishma. तो वही है कि एकता में ही जीत है. तो उसी तरीके से ही इज़ एक्चुअली टॉकिंग टू हिज कि उसको पता है कि बहुत वेरीड काइंड ऑफ किंग्स और वो हैं, तो उनको सबको यूनाइट होकर काम करना होगा.